Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fifth and the last part of the solutions to NCERT questions of the third chapter of Class 11 Chemistry, Classification of Elements and Periodicity in Properties. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 33 to 40. So let's begin. 33rd question is, in the modern periodic table, the period indicates the value of atomic number, atomic mass, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड और एजीमुथल क्वांटम नंबर. इनमें से कौन सी वैल्यू इंडिकेट करता है पीरियड? सो द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n फॉर द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल इंडिकेट्स अ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंडिकेट करता है पीरियड इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Which of the following statements related to modern periodic table is incorrect? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द पी ब्लॉक हैज़ 6 कॉलम्स बिकॉज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन अ पी शेल. द डी ब्लॉक हैज़ 8 कॉलम्स because a maximum of 8 electrons can occupy all the orbitals of d subshell. Each block contains a number of column equal to the number of electrons that can occupy by that subshell. Or the block indicates the value of azimuthal quantum number L for the last subshell that received the electron in building up the electronic configuration. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है ये हमें बताना है. तो यहाँ पे the D block has 10 columns because maximum number of electrons is 10 in the orbital. The N subshell यहाँ पर 8 electrons पूरे गए हैं. D में it has 8 columns because 8 electrons, but maximum electrons that can be filled in D shell subshell is 10. So statement B is incorrect. Next, anything that influences the valence electrons will affect the chemistry of the element. Which of the following factors does not affect the value of valence shell? इनमें से कौन सी फैक्टर वैलेंस शेल को इफेक्ट नहीं करती? वैलेंस शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास और नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स. सो न्यूक्लियर मास डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जो मास है वो रिसाइड करता है इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. सो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता इन द वैलेंस शेल. नेक्स्ट, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज F minus, Ne and Ne plus is affected by nuclear charge Z, valence principal quantum number n, electron interaction in the outermost orbital, or none of the factors because of the size is the same. इनमें से कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? साइज इनमें से किस पे डिपेंड करता है? इन केस ऑफ F minus, Ne and Ne plus. So size of an isoelectronic species increases with decrease in the nuclear charge. साइज बढ़ता है जब न्यूक्लियर चार्ज घटता है. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज फॉर F minus, Ne and Ne plus is follows. F minus is minimum, Ne and then maximum is Ne plus. It is 9, 10 and 11 atomic number. Therefore, the order of increasing size of F minus, Ne and Ne plus as follows. Maximum size is F minus, then Ne and then Ne plus. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहे हैं. Which of the following statements is incorrect in relation to ionization enthalpy? So ionization enthalpy के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? The ionization enthalpy increases for each successive electron. The greatest increase in the ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration. End of valence electrons is marked as the big jump in ionization enthalpy. The removal of electron from the orbitals having lower n value is easier from the orbital having high value of n. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? Electrons in the orbitals bearing lower n value are more affected to the nucleus than the electrons in the orbitals having higher value of n. Hence, the removal of electrons from the orbitals bearing a higher n value is easier than the removal of electrons from the orbitals having a lower value of n. So, last statement जो है वो रिवर्स है. जितनी कम वैल्यू होगी इनकी उतना ज़्यादा पास होगा शेल न्यूक्लियस से और चार्ज उतना ज़्यादा रहेगा. इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टफ. इसलिए लेस वैल्यू ऑफ n ईजियर टफर इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स boron, aluminium, magnesium and potassium,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर मेटेलिक करेक्टर इज, अब मेटेलिक करेक्टर इनमें वे कैसे वेरी करता है बिटवीन बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम. So the metallic character of the element decreases from left to right across a period. Thus, the metallic character of magnesium is more than that of aluminium. The metallic character of elements increases down the group. Thus, the metallic character of aluminium is more than boron. मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है और एल्यूमिनियम का बोरॉन से ज़्यादा है, तो सही. और हेंस द करेक्ट ऑर्डर इज, कंसिडरिंग द स्टेटमेंट वी गेट K इज़ ऑल्सो मोर देन Mg. मतलब कि पोटेशियम का जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है, तो सही ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का है, पोटेशियम का है, फिर उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम और सबसे कम है बोरॉन का. नेक्स्ट, कंसिडरिंग द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर नॉन मेटेलिक करेक्टर इज. अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक पूछ रहा है बिटवीन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन. The non-metallic character of the element increases from left to right across a period. Thus, the decreasing order of non-metallic character is fluorine, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरॉन. Again, the non-metallic character of the element decreases down the group. Thus, decreasing order of non-metallic character of carbon and silicon is carbon is more than silicon. However, silicon is less non-metallic than boron. तो बोरॉन का जो है वो सिलिकॉन से ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर फाइनल ऑर्डर बनेगा फ्लोरीन, मेटेलिक करेक्टर का फ्लोरीन इज मैक्सिमम, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन एंड देन सिलिकॉन. लास्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इज. अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर के टर्म में इनकी रिएक्टिविटी किस फॉर्म में होगी, ऑर्डर क्या होगा. द ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. दस वी गेट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एज फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन. अगेन द ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसलिए फ्लोरीन का ज़्यादा होगा देन क्लोरीन. हाउएवर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन बिकॉज मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ से ऑक्सीजन इज मोर देन क्लोरीन. तो फाइनल ऑर्डर यहाँ से क्या बनेगा, फ्लोरीन इज मैक्सिमम, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन एंड लीस्ट इज नाइट्रोजन. तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.